Hello and welcome to Ignited Minds. Today we are here with the Hindu newspaper analysis, and in this discussion of 31st of the July 2024, we'll be discussing all the news editorials which are important for UPSC prelims and mains both. The discussion will take care of static and current both the dimensions, and you will see there is an important editorial in today's newspaper about the ethics. So let's begin the discussion, and let's see how many news articles are there which are important in today's newspaper. So the important ones which I have highlighted over here are: first, it talks about the death of 122 people in a landslide which happened in Wayanad villages of Kerala. We will see what are the recommendations of Gadgil panel and which have been ignored, and uh, himself, Mr. Gadgil, today said that due to ignorance of the governments of state and center, the tragedy can be called as a man-made tragedy. Second, we also witnessed that the pair won a bronze again for India, Miss Manu and Mr. Sarabjot. Next, there is an important editorial about the governor's powers, and we will also discuss each and every aspect of governor's powers. Further, we will also see what is the crisis in Myanmar and what are different armed groups in Myanmar. There are high chances that UPSC and all the other exams will ask a question from this editorial, because this editorial has in detail talked about all the groups which are active in Myanmar and what they demand, what is their correlation with Bangladesh, and why is there balkanization happening in India's neighborhood, and how India could have prevented it, and how much China's investment is in there. Done. Next important editorial talks about hunger strike and its ethical dimensions. This editorial starts from the hunger strike in the early days of France, and then to Russia, then to India, who all were there till the Gandhiji's the fast on to death. And what are its ethical dilemmas when we talk about the debate between Gandhi and Ambedkar, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है एथिक्स के पेपर को लेके. दैट इज इट इम्पॉर्टेंट कि जब बच्चा अपने घर पे खाना पीना छोड़ देता अपनी जिद को लेके, तो क्या उसको जोर जबरदस्ती करके खाना खिलाया जाए, या फिर जब कोई स्टेट का इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सन बैठ जाता है हंगर स्ट्राइक पे, जैसे मराठास के अभी एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं हंगर स्ट्राइक पे, इज इट नेसेसरी फॉर द स्टेट टू फीड देम? हाउ मच इंपॉर्टेंट वाज जतिन दास फास्ट इन द जेल? ठीक है, इसके साथ साथ जो बाकी सारे एस्पेक्ट्स इस एडिटोरियल ने डिस्कस किए हैं वो भी डिस्कस करेंगे. इसके बाद देर इज अ 150% कस्टम ड्यूटी ऑन द इक्विपमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स. फर्दर, हमने एक कल एडिटोरियल डिस्कस किया था, एक न्यूज आर्टिकल डिस्कस किया था अबाउट वेनेजुएला, एंड आई टोल्ड यू कि आज के पेपर में इस पे एडिटोरियल आएगा. आज एडिटोरियल नहीं आया है, बट देर इज अ न्यूज आर्टिकल जो आज आया है, एंड इट टॉक्स अबाउट कि जो कल का इलेक्शन की जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनने जो डिसीजन लिया था दैट वेनेजुएला का जो इलेक्शन है बाई 51.2% ऑफ द वोट्स गोज टू मदुरो. दैट इज नॉट द केस. अब उसके अगेंस्ट में there are public protests which have started in Venezuela. This country has faced too much in the recent past, from economic crisis to civil crisis, and now there are protests in the name of the uh, uh, election frauds, basically. Now we will again wait for tomorrow or day after tomorrow, and we will see that how the analysis of Venezuelan elections and the whole analysis of Venezuela comes to the Hindu editorials, and then we will discuss it. Okay, so let's begin the discussion with the UPSC prelims PYQ and start this newspaper analysis. This question of UPSC prelims was asked in 2024, and this talks about the Suez pipeline is a strategic route for Persian Gulf and natural gas shipments to Europe. Second, the statement says that
द स्यूम पाइपलाइन कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये जो न्यूज पाइपलाइन है ये लास्ट ईयर द हिंदू ने भी कवर की थी, बट एक ही एडिटोरियल में, एक ही आर्टिकल में आई थी पिछले साल ये। ठीक है, स्यूम्ड पाइपलाइन, ऑल दो इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन थी, बिकॉज टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया था ड्यू टू दी हाउथी अटैक्स in this region. Now, the question which was asked by UPSC was around this only, that ये कहाँ पे है और ये किन दो सीज को कनेक्ट करती है। द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, द एक्सप्लेनेशन इज ट्रू, आंसर इज ए ओनली। एंड यू कैन सी के एक आर्टिकल इंटरनेशनल जो दी एनर्जी organization है, the Energy Information Administration of United States, it basically covered the dimensions of this article, and it was an editorial which was mentioned in way back in 2019. But recently there was editorial in The Hindu on 4th of the Jan 2024. However, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था वो जुलाई में हो ये जून में हुआ था, जून 16 जून को। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडिटोरियल डिस्कस किया गया था। एंड सी इफ यू सी देयर वेर हाउथी अटैक्स इन रेड सी, जहाँ पे बाबल मंडप में अटैक हुआ था। ये रेड सी का एरिया, जो रेड सी और दी व्हाट वी कॉल इज दिस गल्फ, इसको कनेक्ट करते हैं। प्लस दिस इज द स्ट्रेट, पर्टिकुलरली यहाँ पे जो हमें याद रखना था, दैट वाज दिस स्यूम्ड पाइपलाइन। स्यूम्ड पाइपलाइन बेसिकली कनेक्ट्स टू प्लेसेस, वन इज सिदिर करलील, then it goes to Cairo. Cairo is the capital of Egypt, and then it goes to Ain Sukhna. Ain Sukhna एक पोर्ट है रेड सी में, जबकि ये सुएज कैनाल ग्रेट बिटर लेक और स्मॉल बिटर लेक के बीच में से जाती है, एंड देन इट गोज टू मेडिटेरेनियन सी। सो बोथ दीज पाइप, वन इज दिस कैनाल एंड वन इज दिस पाइपलाइन, दे बोथ कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी विद द रेड सी। ठीक है, देयर वर हाउथी अटैक्स एंड दीज हाउथीज आर बैक्ड बाय ईरान। ठीक है, रिमेंबर दिस। और क्वेश्चन आ चुका है हाउथीज के ऊपर भी, एंड ये यमन में जो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इन दी नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ यमन है, उस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं ये हाउथीज। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट इट, आंसर इज ए ओनली, and this is how this news was important, and how UPSC makes news as a base for its UPSC questions in the prelims. Starting with the discussion of this newspaper, and it was discussed that 100 and this headline in today's newspaper starts, this newspaper in the first headline starts with this news of 122 people who died in the landslide in Wayanad district, Wayanad villages of Kerala. बेसिकली यहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमें कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। हावेवर, यूपीएससी ने मेंस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे पहले। यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया था दैट हाउ आर द लैंडस्लाइड्स डिफरेंट फ्रॉम इन हिमालयस देन द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये यहाँ पे लैंडस्लाइड्स का डिफरेंस बताना था। Second, UPSC does ask questions in prelims about the locations, ठीक है, of disaster management। जहां पे भी कोई मेजर डिजास्टर आया हो तो वो मेजर डिजास्टर्स यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता ही पूछता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स कीप सम ऑफ द पॉइंट्स इन माइंड। आज हम प्रीलिम्स कवर करेंगे, कल या परसों इस पे एडिटोरियल आएगा, एंड देन वी विल कवर द मेंस ऑफ दिस न्यूज आल्सो। ठीक है, नाउ दिस न्यूज, सबसे पहली चीज यहाँ पे तीन जगह हैं, मुंडकाकाई, चूरलमला एंड अट्टमाला। दे आर द थ्री विलेजेस विच गॉट बरीड अंडर द डेब्री। ठीक है, पूरे का पूरा विलेज ही लैंडस्लाइड के नीचे आ गया, एंड 122 पीपल सो फार हैव बीन फाउंड डेड। बट अभी भी बहुत सारे लोगों, मतलब अभी नहीं पता चला है कि कितने सारे लोग अभी भी गायब है। रेस्क्यू ऑपरेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। वन थिंग, यहाँ पे रिवर कौन सा है जिस रिवर में ये हुआ है? रिवर का नाम है चालियार रिवर। चालियार रिवर कहाँ पे है? पूथुकल्लू एरिया है, और वहां पे ये चालियार रिवर है। हमें याद रखना है चालियार रिवर। ठीक है, हुआ क्या है यहाँ पे?
सडन और सॉडन मड, बोल्डर एंड अपरूटेड ट्रीज, ये डेबरी में था। अब ये सॉडन मड क्या होता है? दिस इज अ थिक मड जो पूरा लेयर ही कवर कर देता है। रिमेंबर, ये जो सॉडन मड है ये होता क्या है? बिकॉज यूपीएससी कैन यूज दिस कीवर्ड इन इट्स प्रीलिम्स। ठीक है, कि ये इरोजन वाला मटेरियल है, ये डिपोजिशन वाला मटेरियल है, ये डिपोजिशनल फीचर है या ये इरोजनल फीचर है। रिमेंबर दिस वन थिंग। ये रिवर भी हमने याद रख लिया, एरियाज भी याद रख लिए, और हमने ये सॉडन मड भी याद रख लिया। देर आर हैवी रेन्स इन कर्नाटका ऑल्सो, इंटीरियर कर्नाटका में, और हसन डिस्ट्रिक्ट में या हसन तालुक में बहुत ज्यादा रेन्स हुए कर्नाटका में। सेकंड, थर्ड थिंग, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में भी ऐसे ही इंसिडेंट्स हमें मिले हैं। ठीक है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये वायनाड के सदर्न रीजन में है। चूरलमाला, अट्टामाला एंड मुंडकई, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स, तीनों विलेजेस याद रखने हैं। दिस न्यूज वाज फर्दर कवर्ड, एंड यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। सम पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स लाइक रबर इन्फ्लेटेड बोट्स, डीजल ड्रिवन पंप्स, ड्रेनेज इश्यूज लाइक लाइफ जैकेट्स, लाइफ जैकेट्स यूज करते हैं वाटर ड्रेनेज के लिए, तो पंप्स यूज करते हैं, गम बूट्स यूज करते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए और एडवर्स वेदर के लिए बाकी सारे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स लाइक बुलडोजर वगैरह यूज करते हैं। फर्दर यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि कोस्ट गार्ड ने भी यहाँ पे हेल्प की है। इन दी केरला एंड माहे स्टेशन का जो कोस्ट गार्ड है, उनने यहाँ पे हेल्प की। अब यहाँ पे दो तीन न्यूज और है, लाइक ये जो आप यहाँ पे हेडलाइन देख रहे हो, दिस हेडलाइन टॉक्स अबाउट 572 mm of rainfall. This talks about 572 millimeter of rainfall in just 48 hours. Okay. So one thing is this which we need to keep in mind, that there is 572 millimeter of rainfall. Second, Kerala ignored the recommendations to prevent such disasters, says Gargill Committee. Ab, Mr. Gadgil himself has said this thing, that Kerala has ignored the recommendations of Gadgil Committee. तो Gadgil Committee असल में आई क्यों थी और क्यों बनाई गई थी? तो बेसिकली माधव गाडगिल कमेटी 2011 में आई थी, और 2011 में इनने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, और 2013 में इसके बाद आई थी फिर कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है, सबसे पहली कमेटी कौन सी आई? घाटगिल कमेटी। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स पे ही आ गई कौन सी? दूसरी कमेटी जिसका नाम है कस्तूरी रंगन कमेटी। अगर हम गाडगिल कमेटी की बात करें तो ऑल ऑफ द वेस्टर्न घाट्स वाज टू बी डिक्लेयर्ड एज द इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, ईएसजेड। पूरे वेस्टर्न घाट्स को डिक्लेयर करना था ईएसजेड एज पर द गाडगिल कमेटी ऑफ 2011। जबकि कस्तूरी रंगन कमेटी जो 2013 में आई, इसने बोला दैट नॉट होल बट ओनली 37% जो एरिया है, इसको हम क्या कर सकते हैं? ये डिक्लेयर कर सकते हैं एज ईएसजेड, जिसकी वजह से द रेस्ट ऑफ द जितना भी यहाँ पे बचा हुआ है 63% जो एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस, प्रोवाइडिंग अ गुड प्रोटेक्शन टू द सेंसिटिव जोन्स ऑल्सो। नाउ दिस वॉज समथिंग विच वॉज सीन एज अ pragmatic अप्रोच। ठीक है, बट ड्यू टू दी यू कैन से irrational डेवलपमेंट, सच इंसिडेंट्स हैपन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है। जैसे हिमालय का जोन सेंसिटिव है, वैसे ही ये वाला जोन भी सेंसिटिव है, बट देर इज प्राइम डिफरेंस बिटवीन हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड्स होते हैं ड्यू टू रेनफॉल, नॉट टेक्टोनिक एक्टिविटी। बट हिमालयस में देर आर थ्री थिंग्स, वन इज टेक्टोनिक एक्टिविटी, नेक्स्ट इज रेनफॉल, एंड थर्ड इज स्नोफॉल। ठीक है, तीनों चीजों की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं, इसीलिए ज्यादा घातक लैंडस्लाइड्स ऊपर होते हैं और कम घातक लैंडस्लाइड्स वेस्टर्न घाट्स में होते हैं। बट यहाँ पे ये जो आज का लैंडस्लाइड है,
ये बहुत ही ज्यादा मैसिव स्केल पे हुआ है, जिसमें 122 पीपल हैव डाइड. Next important, this was basically related to the same thing that Western Ghats, Karnataka and Tamil Nadu, तीनों states जो है, तीनों में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है. बट यस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, दैट इज नेत्रावती रिवर. अब ये नेत्रावती रिवर क्या है? दिस इज द लाइफ लाइन ऑफ दक्षिण कर्नाटका. रिमेंबर दिस, नेत्रावती रिवर कहाँ पे है? कर्नाटका में है, और सदर्न कर्नाटका में है, जिसको बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ दक्षिण कन्नडा. बिकॉज अर्लियर ऑल्सो यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन अबाउट गोदावरी, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा. ठीक है, तो रिमेंबर दीज आर्टिकल, दीज की पॉइंट्स इन द न्यूज आर्टिकल्स. ठीक है, डन. यहां तक हुआ है ये चीज जो कि प्रीलिम्स में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ द गवर्नर. It talks about that how governor and the powers of the governor to refer the bills to the president without cause are being used. Now we have actually covered this entire scene in one of our editorial discussions lately. अभी दो दिन पहले हमने ये एडिटोरियल डिस्कशन किया था अबाउट द पावर्स ऑफ द गवर्नर, बिकॉज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन, ये एडिटोरियल आया था, पूरे का पूरा एडिटोरियल, बहुत बड़ा एडिटोरियल था. नाउ आई वांट यू टू गो बैक एंड लुक एट दैट वीडियो अबाउट गवर्नर्स डिस्कशन, क्योंकि थंबनेल में ही आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सा न्यूज आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है. गवर्नर के पावर्स भी डिस्कस किए हुए हैं. आई विल बी हियर कवरिंग टू थिंग्स. One is the actual powers of the governor, and second, these cases which have been highlighted in this editorial. तो ये एडिटोरियल क्या क्या बोल रहा है? ये एडिटोरियल बोल रहा है हमें दैट एक तो केस है पंजाब का, ठीक है. सेकेंड इज केस ऑफ तमिलनाडु एंड तेलंगाना, जहां पे द गवर्नर्स एक्शन एंड इनएक्शन इज कॉजिंग द प्रॉब्लम्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. थर्ड इज केरला का, where there is writ petition in the court about governor's actions. ये भी हमने डिस्कस कर लिया है. पंजाब का केस, the court ruled that governor do not have power to veto over the bills, and that whenever they withheld assent, they are bound to return the bill to the assembly. This is something which court has talked about. Now the editorial says that there should be proper limitation from the Supreme Court on the powers of the governor. Otherwise, they are being used as a tool to arm twist the state governments who are not abiding by the whims and fancies of the central government. ठीक है, wherever there is different party in power in the state government. यहां तक क्लियर हो गया. नेक्स्ट, तेलंगाना, the court observed that the governors were expected to act on bills as soon as possible. ठीक है, तो they have to act ASAP. They cannot delay this. See, this is where, whenever it's said rightly by J.S. Mill, that whenever there is absence of law, there is actually a loophole in the law, and there is the highest probability that at that point the law will be violated. Understood yahan tak? There comes the violation of the law. Where there ever is a loophole, there is a violation of law and liberty. यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक प्राइम केस हाईलाइट किया गया है, दैट 7 बिल्स फ्रॉम केरला that may not normally require president's assent were sent to president, in which 4 were refused assent without any reason being assigned to them. ठीक है, this is how the arm twisting of the government comes in. अब मैंने ये एडिटोरियल यहाँ पे लिखा क्यों, ये लाया क्यों है यहाँ पे ये एडिटोरियल? बिकॉज हमको जो हमने डिस्कशन किया हुआ है about governor's powers and all of this referring and deferring of the bills, I want you to remember these points जो हमने यहाँ पे इस एडिटोरियल से डिस्कस किए हैं, क्योंकि इतना समरी में आपको कहीं नहीं दिया जाएगा पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला का समरी. ठीक है, 4 से 5 केसेस है, 4 से 5 एग्जांपल्स है जो डायरेक्ट आपके आंसर में जाएंगी. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग. डन, यहां तक हो गया. गवर्नर के पावर्स, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इज ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट or union executives, but he is appointed for a state, and who appoints him? President इसको अपॉइंट करता है. ठीक है, the state government
basically the state governor is nominated by the center and sometimes is criticized to be the agent of the center. This statement was once asked by UPSC that governor acts as an agent or governor is an agent of the center. ठीक है, जो कि पहले लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ था दैट गवर्नर इज द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट यूपीएससी इन इट्स ऑफिशियल आंसर की हैज नॉट अग्रीड टू इट. यूपीएससी ने बोला नो, दिस इज नॉट द केस, गवर्नर इज नॉट द एजेंट बेसिकली. ठीक है. Next is qualification of the governor. The individual to be appointed as governor should be a citizen of India as per the constitution. Qualifications as per constitution. There are only two qualifications which constitution mentions. One is that he should be citizen of India and he should be of the age 35 years. He should be of the age 35 years. दो ही ऐसी कंडीशंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है. हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन्ड सर्टेन कंडीशंस. क्वालिफिकेशंस हो गई, देयर आर कंडीशंस. रिमेंबर टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज योरसेल्फ. दैट कंडीशंस को ही क्वालिफिकेशन बना के प्रीलिम्स में पूछा जाता है, क्वालिफिकेशंस को कंडीशन बना के प्रीलिम्स में पूछा जाता है, जो दोनों केसेस में गलत होता है. ठीक है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेटली बोल रहा है देयर आर कंडीशंस अटैच्ड टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर. फर्स्ट, he should not be a member of either house of the parliament. Second, if a person is appointed as governor, he is bound to vacate his position if he is belonging to any house of the parliament. Next, governor should not hold office of profit. Governor can use the Raj Bhavan without paying the rent. Then he also gets entitlement to the payment and allowances as determined by Parliament of India. ठीक है. And after appointment, until the completion of the term, governor's payments cannot be diminished by the parliament. Once he is appointed as governor, जो उसका सैलरी उस टाइम पे होगा उसको कम नहीं किया जाएगा तब तक जब तक वो टेन्योर में है. ऑल्दो उसको निकाल के फिर उसको कम कर सकते हैं. Governor has executive, legislative, and financial powers. Some judicial powers are also there with the governor, like he can grant pardon, respite, reprieve, and remission of the punishments. Done. Next editorial talks about the news and the analysis of all of these groups जो यहाँ पे highlighted है आपके सामने about the Myanmar. ठीक है. The different armed groups of Myanmar and the ethnic army organization in Myanmar. हमें यहाँ पे प्रीलिम्स से रिलेटेड पॉइंट्स को याद रखना है. आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक नोट्स ऑफ दिस. ठीक है. सबसे पहले ये एडिटोरियल डिस्कस कर रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन कौन से ऐसे पोर्ट्स है, कौन कौन से ऐसे रीजन्स है जो हमें प्रीलिम्स में जरूरी है हमारे लिए. फर्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ अराकन आर्मी. तो अराकन आर्मी आपको कहाँ मिलेगी? अराकन आर्मी आपको मिलेगी रखाइन प्रोविंस में. ठीक है. एंड रखाइन प्रोविंस जो है वो अराकन आर्मी के अंदर आता है अभी. और यहाँ पे जो काम कर रहा है इसका नाम है रखाइन बुद्धिस्ट एथनिक ग्रुप. अराकन आर्मी इज अ बुद्धिस्ट आर्मी विच इज इन द रखाइन प्रोविंस ऑफ म्यांमार. पहला पॉइंट आपका हो गया प्रीलिम्स का. दूसरा पॉइंट, Arakan army is also knocking on the doors of other important ports cities like क्योकफू, सितवे एंड नागापल्ली. ये कुछ ऐसे पोर्ट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइंस फ्रॉम क्योकफू टू यूनाम प्रोविंस इन चाइना. अब चाइना के लिए जो ये ऑयल एंड गैस पाइपलाइन है, अगर ये रखाइन प्रोविंस में फॉल करती है फ्रॉम क्योकफू, सितवे एंड नागापल्ली, अगर ये रीजन्स किसके अंदर आ गए? अराकन आर्मी के अंदर, तो चाइना का लॉस है. क्योकफू इज ऑल्सो अ वाइटल नोड इन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव.
ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया है कि ये लोकेशंस कहाँ कहाँ पे है, और ये लोकेशंस याद रखनी है। ठीक है, कि ये लोकेशंस कहाँ कहाँ पे है, ये सारी लोकेशंस का आप लिस्ट बनाओगे। नेक्स्ट, दिस एडिटोरियल ऑल्सो टॉक्स अबाउट पीस एंड स्टेबिलिटी इन सितवे। इट सेज सितवे में इट्स क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ इंडिया कालाधन प्रोजेक्ट। ठीक है, विच सीक्स टू कनेक्ट कोलकाता विद मिजोरम विया म्यांमार। ठीक है, कोलकाता, मिजोरम और म्यांमार के बीच में है ये ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट जिसका नाम है कालाधन प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर सितवे पोर्ट आता है। और सितवे पोर्ट अभी रखाइन में जो अराकन आर्मी है ये यहाँ पे हमला करने वाली है, या इन दी अपकमिंग फ्यूचर ये यहाँ पे शायद इस पे अपना इन्फ्लुएंस जमाना स्टार्ट करे, जो कि इंडिया के लिए एक कंसर्न बनेगा। यहां तक हो गया क्लियर। नाउ व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस एथनिक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन? There is this Keran National Union which is coming close to dislodging the military in Mayawadi। तो ये एक और ग्रुप है जिसका नाम है केरन नेशनल यूनियन, और ये कहाँ पे है? ये मियावादी में है। ठीक है, ये भी याद रखना है। मियावादी कहाँ पे है? मियावादी इज एन इंपॉर्टेंट टाउन इन द थाईलैंड बॉर्डर। द लॉस ऑफ दीज कोस्टल एंड बॉर्डर टाउन्स मीन्स losing access to critical resources and much needed revenue for the military। ठीक है, यहाँ पे मैं ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपको मैपिंग करनी है तो आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे मैप लाके आपको प्लेसेस दिखाऊंगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, आपको याद नहीं रहेगा। आप खुद इन प्लेसेस को मैप करो, उससे ये प्लेसेस आपको याद रहेंगी। लॉजिक, वाई? बिकॉज यूपीएससी नेवर गिव्स यू अ मैप। यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में मैप आपको नहीं दे के बना के देता है, क्योंकि यूपीएससी में जो कैंडिडेट्स आते हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा होता है, दोज कैंडिडेट्स हु आर पीडब्ल्यूडी, जिनको नहीं दिखता है, उनके पास स्क्रिप्ट, जो उनके पास स्क्राइब होता है वो उनको बस पढ़ के सुना रहा होता है। ठीक है, इसीलिए वो मैप पढ़ के नहीं सुना सकता, वो टेक्स्ट पढ़ के सुना सकता है। इसीलिए यूपीएससी टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछता है, मैप वाला क्वेश्चन। इसीलिए मैं बस टेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूं, मैप आपको खुद से बनाना ही होगा। ऑल दो ये सारी लोकेशंस जितनी भी न्यूज में आती है, इनका कंपाइलेशन वीडियो प्लेसेस इन न्यूज करके चैनल पे आ जाएगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट आपको ये खुद करना पड़ेगा। ठीक है, देर आर ऑल्सो अदर, जो आपको ये करा रहा है वो आपको धोखे में रख रहा है, वो मत करो। ठीक है, there are also concerns regarding Myanmar's possible balkanization and its deleterious impact on the neighborhood। Recently, बांग्लादेश में भी also शेख हसीना जी ने बोला था that there is attempt कि यहाँ पे नए प्रोविंसेस बन रहे हैं बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पे। तो ये जो प्रोविंसेस होंगे ये एथनिक होमलैंड्स होंगे। बट अगर आप देखो तो कोई भी ऐसा एथनिक होमलैंड नहीं है जो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर ट्राइब के लिए म्यांमार में बनाया गया हो या क्लेम कर रहे हो। ठीक है, हावेवर यहाँ पे एक बाउंड्री है, अराकन एंड चिन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है म्यांमार में, अराकन एंड चिन ऑर्गेनाइजेशन, जो अराकन रीजन में है, और जो चिन रीजन में ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये बोल रहे हैं अराकन एंड चिन ऑर्गेनाइजेशन। लाइक वा, काचिंग एंड तांग, ये कुछ एथनिक ग्रुप्स है शान स्टेट में, ये भी याद रखने हैं। वा, काचिन एंड तांग ये एथनिक ग्रुप्स हैं। दे आर क्रिएटिंग नेशन स्टेट्स। व्हाट आर नेशन स्टेट्स? नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? नेशन स्टेट इज अ स्टेट, अ टेरिटरी, अ पॉलिटिकल टेरिटरी विच इज फॉर्म्ड फॉर द कंसेंसस ऑन एथनिक, लिंग्विस्टिक, रीजनल और रिलीजन बेसिस। दोज आर नेशन स्टेट्स। दे विल क्रिएट इंटर एथनिक फ्रिक्शंस, और फिर क्या होगा? यही लीड करेगा टुवर्ड्स द बाल्कनाइजेशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है ब्रदरहुड अलायंस एंड यूनाइटेड वा स्टेट आर्मी। ये क्या है? दीज आर आर्म्ड ग्रुप्स। देखो, एथनिक ग्रुप्स अलग है, आर्मी के ग्रुप्स अलग है। जितनी भी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जा रही है एक भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन आने की। ठीक है, ब्रदरहुड अलायंस, यूनाइटेड वा स्टेट आर्मी, ये क्या है? ये आर्म्ड ग्रुप्स है। आर्म्ड ग्रुप्स अलग है, एथनिक ग्रुप्स अलग है। नेक्स्ट, बीजिंग यहाँ पे ट्राई कर रहा है एक अग्रीमेंट साइन करने का जिसका नाम था हेगिंग सीज फायर अग्रीमेंट, जो इसी साल जनवरी 2024 में साइन किया। किसने? बीजिंग ने कराया यहाँ पे। बट वो भी एक टेम्पररी प्रोविजन था। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है दैट अभी भी यहाँ पे कोई पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं है।
स्टिल दे आर ट्राइंग कि चाइना यहाँ पे डेवलपमेंट करता जाए, ग्रीन प्रोजेक्ट्स अपने चलाते जाए, ठीक है, क्योंकि चाइना अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो चाइना का दबदबा वहां नहीं बनेगा, और चाइना का दबदबा नहीं बनेगा तो दिक्कत होगा उनको, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप देखो तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है या चाइना का जो सप्लाई है वो अभी तक रुका नहीं है। चाइना ऑलरेडी हैज गिवन दीज फाइटर, यू कैन से, जेट्स एंड एयरक्राफ्ट्स टू म्यांमार. China is supplying missile technology to Myanmar in the past 2 years, which talks about this thing, which highlights this thing that how China is investing too much into Myanmar. ठीक है. Why? Because Myanmar remains a fragmented sovereignty. Once म्यांमार का सॉवरेंटी डिवाइड हो जाएगा बहुत सारे ग्रुप्स में, then the Myanmar's military would not be a significant force in the larger tracts of the country. China had enough leverage to ensure that these EAO would not undermine its interests. तो चाइना अपने इंटरेस्ट को बचाते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए म्यांमार में अपना दबदबा बना रहा है. नाउ द एडिटोरियल एट लास्ट टॉक्स अबाउट वन थिंग, कि अगर इंडिया अफगानिस्तान में, जो कि सिविल वॉर में कंट्री थी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लगा सकता है, वहां का पार्लियामेंट बना सकता है, फ्रेंडशिप डैम बना सकता है, बहुत सारी चीजें बना सकता है, देन हम म्यांमार में क्यों नहीं कर रहे हैं ये सब चीजें, जबकि म्यांमार हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी आएगा, और म्यांमार हमारा कहाँ पे भी आएगा, बिम्स्टेक में भी आएगा, म्यांमार हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी आएगा. तो ये सब चीजें हमें देखनी होंगी, दैट वाई इज इट सो. दिस एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट एंड आई वांटेड टू डिस्कस इट एट अ लेंथ. ठीक है. ये एडिटोरियल टॉक्स अबाउट ऑन एथिक्स ऑफ हंगर स्ट्राइक. व्हाट इज द एथिक्स ऑफ हंगर स्ट्राइक? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. आप सब लोगों ने क्या किया होगा बचपन में, अगर आपको साइकिल नहीं मिली होगी, अगर आपको चॉकलेट नहीं मिली होगी, तो आपने बोला होगा मैं खाना नहीं खा रहा. सिंपल. अगर आपको पिकनिक पे नहीं दिया जाने गया होगा तो आपने बोला होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा. बट is that hunger strike a mode of protest? Or once this hunger strike is adopted as a mode of protest, should your parents or should your state act with brutal force to force you to take your intake so that you survive? क्या आपको खाना जानबूझ के दिया जाएगा ताकि आपको जिंदा रखा जा सके, बस इसलिए क्योंकि अगर कोई इंसान हंगर स्ट्राइक पे मर गया तो स्टेट में क्राइसिस हो जाएगा? इज इट सो? क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या स्टेट ऐसा कर सकता है? तो दैट इज व्हाट डिस्कशन इज देयर इन दिस एडिटोरियल. एडिटोरियल बहुत बड़ा है, बट वी विल डिस्कस इट प्रॉपरली. ठीक है. देयर इज अ कोट विच आई वॉन्ट यू टू कीप इन योर नोट्स, which was said by Jatin Das. Jatin Das was a revolutionary इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और जतिन दास का नाम आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा. ठीक है. जतिन दास का नाम आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा. जतिन दास सेज दैट इट इज फार इजियर टू डाई ऑफ अ पुलिस बुलेट. कि आप जाओ प्रोटेस्ट करो और पुलिस या आर्मी आप पे एक गोली चलाएगी, आप मर जाओगे. ठीक है. दैट वाज इन द पुलिस स्टेट ऑफ कॉलोनियल टाइम्स. और बाय गोइंग टू गैलोस देन पेरिशिंग अवे आयोटा बाय आयोटा इन अ हंगर स्ट्राइक. कि ये इजी है, आप जाके प्रोटेस्ट करो और अपने आप को मरवा दो, गोली खाली, खत्म कहानी. बट अगर आप हंगर स्ट्राइक में अपने आप को पेरिश कर रहे हो आयोटा बाय आयोटा, दैट इज मच डिफिकल्ट, बिकॉज हंगर स्ट्राइक इज डिफिकल्ट. ठीक है. कोई नहीं कर सकता, बहुत कम लोग कर सकते हैं हंगर स्ट्राइक. ठीक है. देन इट टॉक्स अबाउट, ये थोड़ा सा डिस्कशन है यहाँ पे, कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है. पहले जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो खत्म होता है, फिर ये मसल्स को कैनिबलाइज करती है, मसल्स को खाना स्टार्ट करती है, फिर बोन्स को खाना स्टार्ट करती है, फिर जब ब्रेन को खत्म, मतलब ब्रेन को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, तो देन ब्रेन इन इट्स कंफ्यूजन, एंग्जाइटी एंड डिलीरियम, इट इवेंचुअली डाइज. दैट इज व्हाट हैपेंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी वंस इट गोज टू हंगर स्ट्राइक. बट हंगर स्ट्राइक में जाने से पहले हमें यह समझना होगा दैट Russian political prisoners in 19th century during the Tsarist times, they engaged in hunger strike. उस टाइम पे इस हंगर स्ट्राइक को बोला जाता था गुलोदोवका इन सर्बिया. दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रिजन कंडीशंस. जो प्रिजन के अंदर कंडीशंस थी उसके ऊपर इनने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. वैसे ही जतिन दास ने भी प्रिजन के अंदर जो कंडीशंस हो रही थी उस पर स्टार्ट किया था हंगर स्ट्राइक.
इसके साथ साथ देयर वाज लियोन ट्रॉट्स्की, जिसने स्टार्ट किया था हंगर स्ट्राइक विद अदर प्रिजनर्स इन 1898। फर्दर देयर वाज in 1909 Miriam Wallace Dunlop, who refused food until she was recognized as a political prisoner. So these are some names जिन्होंने हंगर स्ट्राइक का ओरिजिन किया। यहां तक हमने समझ लिया। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम है जिसका नाम है टेरेंस मैक्सविनी। ही वॉज समवन हु वॉज आयरिश रिपब्लिकन। ठीक है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट? टेरेंस मैक्सविनी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो जतिन दास है उसको बोला जाता है इंडियन टेरेंस मैक्सविनी। टेरेंस मैक्सविनी मर गया 1920 में। लाइक ही टुक टू मार्टेडम, अपनी जान दे दी हंगर स्ट्राइक में रहते हुए। अब अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव देखो तो इंडिया में देयर वाज सबसे पहले पंडित राम राखा। ही वाज अ गदराइट हु डाइड आफ्टर हंगर स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट, बिकॉज उसका जो जनेऊ था, जनेऊ मीन्स, जनेऊ क्या होता है? जनेऊ एक सेक्रेट थ्रेड होता है जो हिंदू पहनते हैं अपने बॉडी पे। ये एक शोल्डर से आपके वेस्ट तक जाता है। ये एक थ्रेड होता है, यूजुअली वाइट कलर का या किसी और कलर का थ्रेड होता है। एक प्रैक्टिस होती है हिंदुइज्म में, एक टाइम आने के बाद, बच्चा बड़ा होने के बाद उसको जनेऊ पहनाया जाता है। और देन ही इज फॉर दिस थिंग कि वो अब स्पिरिचुअल और रिलीजियस बनना स्टार्ट करेगा, वो रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट करेगा। ये एक प्रैक्टिस है, रिचुअल है। बट पंडित राम राखास को ये निकाल दिया गया था, फोर्सफुल रिमूवल था बाय जेल अथॉरिटीज, एंड देन ही स्टार्टेड हंगर स्ट्राइक। मैं ये पॉइंट्स क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि डायरेक्ट प्रीलिम्स में आ सकते हैं। फिर आप बोलते हो कि सर स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन नहीं आया। स्पेक्ट्रम से नहीं आया तो यहाँ से तो आया ना, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है ना, आपका न्यूज़पेपर सिलेबस का पार्ट है ना। स्पेक्ट्रम से नहीं आएगा तो क्या होगा? यहाँ से तो आ सकता है ना क्वेश्चन, ये भी तो पार्ट ही है मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर आप बोलोगे स्पेक्ट्रम नहीं चली, स्पेक्ट्रम नहीं चली वो अलग बात है, बट क्वेश्चन कहां से आया वो समझना जरूरी है। नेक्स्ट, गदर लीडर ही था सोहन सिंह बाखना, हु टुक टू हंगर स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेग्रीगेशन ऑफ मजहबी सिख्स हु वर डीम्ड एज लो कास्ट। और उनने लाहौर जेल में स्टार्ट किया था, सोहन सिंह बाखना ने। ये भी नाम आपने, दोनों नाम आपने पढ़े होंगे कहाँ पे? अपनी स्पेक्ट्रम में। अगर नहीं पढ़े हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वाज विनायक सावरकर, वाज अपोज टू हंगर स्ट्राइक इन अ स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट्स। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या था, विनायक सावरकर और नानी गोपाल मुखर्जी के बीच में ऐसा हुआ था कि गोपाल मुखर्जी जो था, ही वाज ऑन अ फास्ट इन प्रोटेस्ट ऑफ प्रेजेंट कंडीशंस फॉर 72 डेज। ठीक है, बिकॉज मुखर्जी 72 डेज तक फास्ट पे था। अब ऐसा लग रहा था कि ही माइट किल हिमसेल्फ। ठीक है, क्या वो मर जाएंगे? अब फास्ट पे रहते रहते वो मर जाएंगे। इसीलिए सावरकर ने दूसरा प्लेज लिया कि अगर मुखर्जी डिसएंगेज नहीं होते हैं फास्ट से तो मैं हंगर स्ट्राइक पे चला जाऊंगा, विच उल्टा क्रिएटेड टू मच ऑफ फोर्स ऑन द जेल अथॉरिटीज। ठीक है, उसके बाद देयर इज दिस थर्ड हंगर स्ट्राइक बाय जतिन दास, in which he said iota by iota killing of yourself is much difficult. Now जतिन दास was forced with a tube, जो आपने इस पिक्चर में भी देखा होगा, ये जो पिक्चर है, ठीक है, इसमें भी देखा आपने, that he was forced by this tube through his lung। बट इसी में ये ट्यूब जो है उसके एक बार पियर्स कर गया उसके लंग को, जबकि ये फूड पाइप के थ्रू जाना चाहिए था, ये विंड पाइप के थ्रू चला गया और लंग को पियर्स कर गया, एंड देन ही गॉट पैरालाइज्ड। और 63 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद ही टुक टू मार्टरडम। इसीलिए उसको भी बोला जाता है इंडियन टेरेंस मैक्सविनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए। ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके अदरवाइज इस डिस्कशन में भी इंपॉर्टेंट है अबाउट हंगर स्ट्राइक। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कशन आता है गांधी जी और अंबेडकर का। ठीक है, डिस्कशन गोज ऑन कि गांधी जी स्टार्टेड हंगर स्ट्राइक। ठीक है, गांधी जी स्टार्टेड हिज फाइट फॉर नॉन वायलेंस। एज ही वाज कमिटेड टू नॉन वायलेंस, ही हेल्ड एंड स्टार्टेड फास्टिंग। ही सेड, गांधी जी ने क्या बोला? दैट फास्टिंग कैन ओनली be resorted to against a lover and not to extort rights but to reform him as when a son fasts for a parent who drinks। ये मैंने क्या बोला था आपको? जब आप अपने माँ बाप के सामने प्रोटेस्ट करते हो कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, वही गांधी जी बोल रहे हैं कि
ये उस इंसान के साथ किया जा सकता है, ये हंगर स्ट्राइक, जो आपसे प्यार करता हो, जो आपको ना देखे कि आप खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है। तो इसको कहीं और नहीं लेके जाना है, इट्स नॉट दैट लवर, इट्स द वन हु केयर्स फॉर यू, द पेरेंट्स, ठीक है। एंड हेयर लवर मीन्स अ स्टेट, द स्टेट लव्स इट्स सब्जेक्ट्स, स्टेट के सब्जेक्ट्स ही उसका सब कुछ होते हैं, सिटीजन्स ही उसका सब कुछ होते हैं। एंड वंस सिटीजन्स सिट ऑन अ हंगर स्ट्राइक, स्टेट हैज टू टेक कंसर्न ऑफ हिज इट्स सिटीजन्स। इसीलिए गांधी स्टार्टेड व्हाट, हंगर स्ट्राइक्स। और सबसे पहला हंगर स्ट्राइक उन्होंने किया था चौरा चौरी के बाद। ये भी याद रखना है, नहीं लिखा हुआ स्पेक्ट्रम पे, चौरा चौरी वाला इंसिडेंट नहीं लिखा हुआ स्पेक्ट्रम पे, ठीक है, ये भी याद रखना है। और चौरा चौरी में उनने 3 हफ्ते तक हंगर स्ट्राइक की थी। सितंबर 1932 में गांधी जी ने दूसरा हंगर स्ट्राइक लिया था, फास्ट ऑन टू डेथ इन यरवाड़ा जेल, जहां पे फिर डॉक्टर अंबेडकर गए थे उनको मनाने के लिए। ये इसलिए लिया गया था क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये डिसीजन आया था दैट दे विल रिजर्व सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। देन अंबेडकर जो है ही अग्रीड कि ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, रिजर्वेशन लेंगे। बट दिस शेप्ड द व्यू ऑफ अंबेडकर एंड दिस शेप्ड द व्यू ऑफ स्टेट, बिकॉज अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर इज द वन हु इंस्पायर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ही सेड, विच इज अ क्रिटिकल डिबेट, जो आपको यहाँ पे अपने आंसर्स में कोट करनी है इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एथिक्स, एथिक्स पेपर, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, दैट लेटर Dr. Ambedkar said, we must abandon the methods of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. तो ethical जो concern है या constitutional concern about these methods, Dr. Ambedkar says that they are not constitutional methods. We must abandon them. Dr. Ambedkar also felt that the constitutional methods offer a constructive approach. कि आप constitutionally protest करो, that is good. Non-cooperation, civil disobedience या सत्याग्रह करके आप protest मत करो. You should adopt to constructive approach. Then he also said that unconstitutional methods are a grammar of anarchy. They will create just anarchy in the state. Everyone will take to hunger strike and they will kill themselves, and then there will be protest. You will see the importance of this debate of Ambedkar, that after this, I'll give you an example. Simple example ये है कि with this 40 Shri Ramalu, इन्होंने स्टार्ट किया हंगर स्ट्राइक। इनने स्टार्ट किया हंगर स्ट्राइक जस्ट टू डिमांड अ सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 58 डेज का इनने हंगर स्ट्राइक किया एंड देन ही डाइड इन दी हंगर स्ट्राइक, जिसकी वजह से मैसिव प्रोटेस्ट हुआ पूरे रीजन में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, हर एक एरिया में प्रोटेस्ट हुआ। जब ये क्राइसिस हुई तो उसी के बाद फिर जो है कमीशन सेट किया गया, फजल अली कमीशन, ठीक है। उससे पहले जो कमीशन आए थे, जेवीपी कमीशन, उनने बोला था हमें नहीं चाहिए स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक मैटर्स, ठीक है। बट देन वी हैव टू कंसिडर दिस डिमांड एंड देन वी क्रिएटेड इंडिया इनटू दीज मच ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और वो अभी भी चल रहा है। इसी के साथ साथ देयर वाज दिस अनदर वेल नोन प्रोटेस्ट बाय इरोम शर्मिला। अगर आपको याद हो, नहीं फॉलो किया होगा केस, ठीक है, आप शायद नए होंगे, बट इरोम शर्मिला, शी टुक in November 2000, after 10 civilians were allegedly gunned down by 8th Assam Rifles in Manipur, Iram Sharmila began the hunger strike. Ms. Sharmila attempt was arrested by the state because it was alleged that she attempted for suicide, और सुसाइड का केस बना के उसको 16 साल का जेल डाल दिया गया। तो दीज आर टू केसेस विच द एडिटोरियल डिस्कसेस कि एक केस में आपने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कर लिया, दूसरे केस में जहां पे कोई ह्यू एंड क्राई नहीं हुआ, इट वाज जस्ट साइलेंटली केप्ट अपार्ट, ठीक है, यहां तक तो हो गया। नाउ ऑक्यूपाइंग फॉरेन फोर्सेस, स्टेट हैज एन apparatus टू कंटिन्यू टू रेस्ट विद दी हंगर स्ट्राइक, कि जहां पे भी स्टेट को चलता है वो हंगर स्ट्राइक को दबा देता है या सप्रेस कर देता है या स्टॉप कर देता है, चाहे कैसे भी करे, चाहे वो फोर्सफुली आपको खाना खिला दे, ट्यूब डाल के खाना खिला दे, ऑक्सीजन लगा के आपको जिंदा रखे, बट वो हंगर स्ट्राइक को रोकना ही चाहते हैं। जैसे यहाँ पे दो ऐसे इश्यूज थे, ठीक है। फर्दर यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड
कि यहाँ पे दो और एग्जांपल्स दी गई है, ठीक है। दो एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल है मोहन किशोर नामादास की, जो बंगाल रेवोल्यूशनरी था, एंड दूसरी है अच्युत घातक की। ही वॉज ऑल्सो अ फेलो रेवोल्यूशनरी। दोनों को फोर्सफुल ट्यूब डाल के खाना खिलाया जा रहा था, बट दोनों को एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ और दोनों को फिर लास्ट में प्रॉब्लम्स हुई बिकॉज ऑफ दिस फोर्स फीडिंग। Further, the discussion goes on that whether should we actually consider this इरोम शर्मिला जैसा केस है यहाँ पे, दैट वी कंसिडर इट एज अ सुसाइड, ठीक है, दैट इट्स अटेम्प्ट टू सुसाइड। डू यू रियली थिंक दैट इट्स एक्चुअली अटेम्प्ट टू सुसाइड, और स्टेट शुड टेक इट समथिंग डिफरेंट? एंड यहाँ पे एक ये कोट देते हैं, ये जो ऑथर है इसके, ही कोट्स समथिंग दैट हर्बर्ट मैककैब argued in 1981। हर्बर्ट मैककैब का एक कोट है, एंड दिस कोट टॉक्स अबाउट दैट द केस फॉर सेइंग द मार्गरेट थैचर इज अ मर्डरर, ठीक है, as it seems to me as strong as weak as the case for saying that Bobby Sands was a suicide। Bobby Sands was a military commander, ठीक है, he was a Republican army activist who died in a hunger strike, but Margaret Thatcher was not a murderer, ठीक है, it does not make sense to the author, ठीक है, is a murderer, and it seems as strong as weak as the case for saying that Bobby Sands was a suicide। This is not the case, he says। But when it was asked by this army activist, so he said, if I die God will understand कि मैं क्यों मरा, because he was a Catholic, है ना, he shouldn't have attempted to suicide। But when he took to hunger strike, he was asked, isn't it uh, suicide? He said, no, the God will understand। Why will he understand? Because his hunger strike was not a suicide, his hunger strike was there to achieve a larger goal। एंड डू यू थिंक देर इज वन मोर डायलेमा एसोसिएटेड टू इट? एक डायलेमा तो हमने देखा स्टेट का, दूसरा डायलेमा यहाँ पे है अबाउट दी डॉक्टर्स हु हैव टेकन एन ओथ दैट they will ask for the will of the patient and then they will treat him। Understand this thing, that they are forcefully using their knowledge to do something which is against the will of the person who is on the hunger strike, ठीक है, because these hunger strikes are the last attempt at the resistance। With this I leave you with all of those dilemmas and all of those concerns, which you should understand very well, that how to deal with all of this, because this is a most probable question in ethics paper। Lastly, there is this news which I wanted you to keep a note of, that there is a 150% custom duty on some products। So there can be custom duty of this much amount। बस हमें ये नहीं याद रखना है कि किन किन प्रोडक्ट्स पे 150 कस्टम ड्यूटी लगती है, और प्रोडक्ट्स का नाम नहीं पूछेगा, बट it can be used in a statement that even 150% custom duty can be imposed on some of the products। Yes, it can be imposed। Further, there is one more article about the protest in Venezuela। As I said, it was elected ये एडमुंडो गोंजालेस, जिसका यूएसए एंड वेस्ट सपोर्ट कर रहा था, एंड दी निकोलस मदुरो, जिसका ईस्ट रशिया, टर्की एंड चाइना सपोर्ट कर रहा था। Nicolas Maduro was yesterday declared as day before yesterday declared as the winner of the elections with 51.2% of the majority। But now the protests have started from the Edmundo Gonzalez side, that he said कि एडमंडो गोंजालेस के पास जो है, उसके पास डबल वोट्स थे एज मेनी एज मदुरो, बिकॉज 73% ऑफ द बैलेट्स को जब स्टडी किया गया तो 73% वोट्स जो है वो गोंजालेस के थे। बट नाउ द प्रोटेस्ट विल स्टार्ट एंड we will see what happens in this Venezuela। That is something which is just to be tracked of, ठीक है। Lastly, we already have discussed this news article, I guess, that Manu is back on the podium with Sarabjot। She again got the bronze, the couple got the bronze, ठीक है। Earlier also she won a bronze in the 10-meter rifle। This pistol, ठीक है, finals they just missed by a whisker, otherwise they could have got gold। So now the couple has got again the bronze, so this is the second time that we have seen Manu on the podium।
Now, why am I discussing this? Because UPSC has been asking questions from sports. ठीक है, तो ये नहीं समझना है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूपीएससी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, यूपीएससी ने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे हैं। एंड मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है दैट यूपीएससी जो ये क्वेश्चन पूछता है स्पोर्ट्स से, वो उन इवेंट से होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। बस दैट्स इट। ये ओलंपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और इंडिया का परफॉर्मेंस यहाँ पे नोट किया जाएगा, ये याद रखना है। लास्टली there is this question from UPSC prelims, ये मेंस पेपर GS2, and this question was about crucial aspects of development process which have been the question asked that these developmental process के जो ये crucial aspects है, they have been inadequate attention, they have paid inadequate attention to the human resource development in India. You should suggest some of the measures that can address this inadequacy. कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि जितने भी हमने डेवलपमेंटल स्टेप्स लिए हैं अभी तक, उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारा थोड़ा कम अटेंशन में रहा है। हाउ कैन वी एड्रेस दिस इन एडिकेसी? हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, अब क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसको लेके। ठीक है, सो फर्स्ट हमें इस क्वेश्चन में क्या डील करना है, ठीक है, कि इन एडिकेट अटेंशन मिला है या नहीं मिला है। तो सो वी विल सी, वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद सम फैक्ट्स, ठीक है, अबाउट आर ह्यूमन रिसोर्स और अबाउट आर ह्यूमन कैपिटल और अबाउट आर डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये फैक्ट्स हम लिखेंगे कि हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अभी स्किल डेवलपमेंट नहीं है, हेल्दी हमारा जो डेमोग्राफी है वो हेल्दी नहीं है, एनीमिया है, वुमेन का इशू है, एडोलसेंट गर्ल्स का इशू है, वी हैव आल्सो सीन people suffering from non communicable diseases. Everything will be discussed in that. Once that aspect of this question is done, then we will shift our focus to how to address this inadequacy. So there are two parts of this question: how to address this inadequacy. Then we will talk about some schemes, some initiatives of Ministry of Skill Development, and we will also talk about some of the initiatives by the Government of India, like the ones which are for skill development, like Kaushal Vikas Yojana, like Skill Development Initiative of India, like Scaling India, Stand Up India, some of the initiatives about skilling, and some of the initiatives about education, okay, like the education policy of 2020. We'll also talk about the new age skills which are required for the market. Okay. All of these initiatives can be very well read from the economic survey. And all of these dimensions can be very well read from the economic survey, to which there will be a video coming on in the series of these discussions on the same YouTube channel. You can just go through this answer and understand the nits and grits of this question. With this, I thank you all for being into this discussion. All the best for your preparation ahead.